last lecture we had seen basic tags of HTML, and then we had seen basic structure of HTML. So anybody can tell me what are the basic tags of HTML? Basic tags HTML के कौन से होते हैं? Body, Body, head, title, head, title, and body, body, head, title. तीन हो गए. Which is the last one remaining? HTML. HTML, obviously. So better you start with proper sequence. पहला हम कौन सा tag open करते हैं? Which is the first tag we open? It is HTML, right? HTML के बाद हम HTML जो है document वो कितने parts में divided है? It is divided into two parts. Which one? An HTML document is divided into two sections. Which one? Head and body. Head and body, head and right? body. So HTML head, head के अंदर कौन सा tag open होता है? Title, Title, right? title, And once we are Title. done with the title, we use body. So these are the four. Better you go by sequence, तो आपका coding में भी गलती नहीं होगा, right? So we had seen basic tags. Then we saw there are two types of tags. So which are they? Two types of tags. Tags कैसे रहते हैं? Angular brackets में रहते हैं, right? तो ये tags कभी कभी pair में आते हैं और कभी कभी अकेले रहते हैं. So what are these called as? Yes, the ones which come with pair, matlab it will have a opening tag as well as a closing tag. So such tags are called as container tags, container tag. Very good. The tags which come in pair are called as container tags, and the tag which come alone are called as empty tag, standalone tag. So we have already discussed. Is there any problem with the basic structure? किसी को नहीं समझा? Anybody want me to repeat it again? इट इज सिंपल इनफ. HTML डॉक्यूमेंट है पूरा, उसको दो सेक्शन में डिवाइड किया है, हेड एंड बॉडी. हेड में आप टाइटल दे सकते हैं एंड वॉट एवर थिंग्स यू वांट टू डिस्प्ले ऑन योर वेब पेज, दैट ऑल थिंग्स यू नीड टू राइट इन वेयर, इन विच सेक्शन? body section, In the body section, right? In the last lecture we have seen how to write the HTML code. Which software or which application are we using to write that HTML code? Sublime. Okay, what we are using? Sublime. There are a number Notepad. of softwares available in the market, but we use Notepad, right? Can I use a Word document? No. No. Yes, I You have, think. see, you can type that code in Word document, but you cannot save it as .html. You can try it at home and just let me know whether it works. Okay, but we will be using Notepad for HTML as well as JavaScript, right? Yes, So ma'am. then we saw how we were saving the file, HTML file. So can anybody tell me the steps from the scrap? I have opened a blank document. Then what is my first step? I have to save. No, first what we have to write, we have to write the proper basic structure. Until and unless you write a proper basic structure, वो properly output देगा ही नहीं. तो पहला काम क्या रहता है आपका? Blank notepad open करने के बाद basic structure जो है हमने अभी जो discuss किया, first you have to type that, then you have to save the file. So now how do I save the file? Yes, anyone? Save as. Okay. Okay, first time में हमने last देखा था कि save as रहे या save. If you are saving that file for the first time, उसका टाइप क्या रहेगा? सेव रहेगा कि सेव एज रहेगा? इट विल बी सेव एज ओनली, सिंस वी आर सेविंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. ठीक है, तो यू कैन क्लिक ऑन सेव बटन और सेव एज बटन. देन व्हाट नेक्स्ट? Then Ma'am, we need type to the file name and type .html. Yes. Before that, we had discussed that whenever you are developing any web pages, it is a good practice that you create a folder first. And in that folder, you have to save all those files. Why? Because later in the upcoming lectures, we will be linking these two different web Linking. pages. Right. Yeah, and also we will be calling some different files
in our HTML code. So it is a good practice that whatever external files you will be using in your HTML code, those all should be in the same folder so that you won't get any error. So make it a practice that whenever you are making any HTML coding, first you have to create a folder. Okay, and while saving the file, you have to select the folder, that destination folder properly you have to select. Then while saving, you have to give a proper file name and extension क्या दे सकते हैं हम .html और .htm. Now फाइल सेविंग के लिए भी मैंने एक आपको फाइल नेमिंग के लिए एक्चुअली मैंने एक बोला था कि कैसे होना चाहिए फाइल नेम. Should I use any special characters or some spaces in the file name? Ma'am, small character, Yes, small small character. letters में लिखिए and make it a single word. Don't use any extra characters, not even a space. ठीक है? So जब भी आप external file बुलाएंगे, so you won't be making any mistakes, right? So these are just good practices. ऐसा नहीं है कि it is mandatory, but to avoid the upcoming errors, it is a good practice कि आप ये rules follow करो तो आपको 12th में भी कुछ problem नहीं आएगा, right? So I hope it is clear. Then we also saw what an attribute is. So anybody would like to add anything कि attribute मतलब होता क्या है? We had seen this right in the last lecture. Attribute मतलब क्या होता है? Ma'am, it gives properties to the tag. Okay, can we say some additional information we want to mention related to that tag? Yes, ma'am. Yeah. So additional information related to that particular tag, we need to make use of attribute. So here you can see which tag I am using. See, tag मतलब क्या होते हैं? These tags are told that you have to do this particular work. तो बॉडी में अगर आपने जो भी कुछ लिखा है तो बॉडी टैग के अंदर जो भी लिखा रहेगा उसका काम क्या रहेगा? वेब पेज पर डिस्प्ले करना है, राइट? ये बॉडी का काम है. सिमिलरली टाइटल टैग का क्या काम क्या है? उसके अंदर आप जो भी टेक्स्ट लोगे वो आपके वेब पेज के टैब में आएगा, राइट? इट विल बी एक्टिंग एज अ टाइटल. तो हर एक टैग का अलग अलग काम है. बट अगर आपको उस टैग के बारे में और भी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन में देनी है so we need to make use of an attribute, right? So here you can see the example. I am making use of body tag. उसका कौन सा attribute है? bg color and it is given green. So this attribute कैसे रहता है? देखो attribute कहाँ पे place होता है? Is it placed in the opening tag or closing tag? Whichever attribute you are using, where it is placed and how it is placed. On background, first page on. नो नो, सी हम कोई भी टैग का एट्रीब्यूट अगर यूज करना चाहे तो फर्स्ट यू हैव टू राइट इट इन विच टैग? ओपनिंग टैग ऑफ दैट पर्टिकुलर टैग. ओके, ओपनिंग टैग है ना. तो अभी ओपनिंग टैग में मेरा टैग कौन सा है? बॉडी. वंस आई एम डन विद द बॉडी टैग नेम, आई हैव टू गिव अ स्पेस. Understand? I have to give a single space and then I have to mention the attribute name. And once we have assigned the attribute name, you have to actually give it some value. हमने लास्ट टाइम देखा है कि एट्रीब्यूट को हमको वैल्यू देनी ही पड़ती है. तो यहाँ पे एट्रीब्यूट कौन सी है? पीजी कलर. असाइनिंग के लिए कौन सा ऑपरेटर है? इक्वल टू एंड ग्रीन. नाउ ये जो ग्रीन है, इज इट मैंडेटरी दैट आई हैव टू इंक्लूड इन डबल कोट्स? Yes, is it mandatory? Actually, it is no. Actually, it is not mandatory. When it is mandatory, when you are giving a value which consists some special characters. Okay, suppose मैंने attribute ली है width and width में मुझे equal to 100% या 20% ऐसे देना है. तो I cannot simply write 20%. I have to mandatorily enclose that 20% in the double quotes. Why? Because it is consisting of some special character. If your value does not have any special character, then it is not mandatory. Okay, right? So these all things we have already seen: container tag, empty tag. Then we had seen what are the purposes of the tag. So HTML tag का purpose क्या है? क्या बताता है HTML tag? कि it is a HTML document, right? Then head tag का purpose क्या है? Head में आप जो title डालोगे वो आपके टाइटल बार में दिखेगा. उसका काम है सिर्फ टाइटल बार में
डिस्प्ले करना है, राइट? एंड वेरी इंपॉर्टेंट, द text or the head part is generally utilized for search engine optimization. This search engine optimization इसका पूरा एक 12th में आपको चैप्टर ही है exactly क्या है, तो आप ये बस ध्यान में रखो कि हेड टैग का जो भी काम है वो एक्चुअली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में उसका काम रहता है. वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल्स इन 12th स्टैंडर्ड. ओके, नेक्स्ट टाइटल क्या है? जो भी आप टाइटल दोगे वो आपके टैब में दिखेगा, वो ऊपर है ना, हमने देखा था टाइटल कहाँ डिस्प्ले होता है, राइट? Today again we will see while coding. And last but not the least, body section, मतलब उसमें आपको जो भी कंटेंट आपके वेब पेज पे दिखा है वो सारा उधर आपको कोडिंग करना है, राइट? So whatever all contents you want to display in your web page, all that things are need to be coded in the body section, right? इसमें कुछ डाउट है आपको ये स्लाइड में? हाँ मैम. No. No, ma'am. ओके ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट. अभी अब हम आपने अगर टेक्स्ट बुक देखी होगी, कोई भी HTML कोड आप अगर देखोगे तो द फर्स्ट लाइन यू एनकाउंटर इज व्हाट? एंगुलर ब्रैकेट, एक्सक्लेमेटरी मार्क, डॉक टाइप HTML. नाउ व्हाट डज दिस पर्टिकुलर फर्स्ट लाइन इंडिकेट? एक्चुअली ये जो पहली लाइन है, इसी पहले हमने जब बेसिक स्ट्रक्चर देखा प्रीवियस वन, उसमें हमने ये लिखा नहीं था, बट since from the HTML5 version we have to mention this line just to indicate the flavor of the HTML. अभी हमारा फ्लेवर कौन सा है HTML का जो हमारे सिलेबस में है? It is HTML5. Okay, so it is mandatory thing that before you start coding, the first line of your code has to be doc type HTML and exclamatory mark before doc type, right? Just to indicate what? Yes, to indicate what? The version of the HTML. वर्जन ऑफ द HTML फाइल. वो किसको हेल्प करेगा? ब्राउजर को, क्योंकि ब्राउजर हमारा वेब पेज दिखाने वाला है, राइट? तो ब्राउजर जब वो कोडिंग पढ़ेगा तो उसको समझ में आना चाहिए कि द पेज विच इज कोडेड इज ऑफ HTML5 वर्जन, राइट? देन दिस आल्सो वी हैव सीन. सी नाउ आपके सिलेबस में विंडोज भी है एंड लिनक्स भी. अभी भले ही लिनक्स इज नॉट देयर फॉर द रिड्यूस सिलेबस, बट अगर ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो HTML का कोड किस में टाइप करोगे आप? नोटपैड में, राइट? अभी करंटली वी आर यूजिंग विंडोज, बट सपोज आई हैव गॉट अ लिनक्स मशीन, तो आप ये जो कोडिंग है वो किस में टाइप करोगे? यू हैव टू टाइप दिस इन द टेक्स्ट एडिटर. इट विल सिमिलर सॉफ्टवेयर लाइक अ नोटपैड फॉर लिनक्स एंड द सेविंग ऑप्शंस आर सेम व्हाट वी हैव सीन अर्लियर. इसमें कुछ डाउट है? So for Windows, you will be using Notepad, and for Linux, you will be using text editor. Okay. You can see the saving options or the steps for saving the file are same. What is the extension? Acceptable extension for an HTML file? It could be .htm or .html. Okay. इसमें कुछ डाउट है आपको? No, ma'am. No. No, Now ma'am. here, ये क्या लग रहा है आपको, क्या होगा? ये जो पिक्चर दिखा है, what it must be? Can I say it as a layout of something or particular web page? Yes Yes, ma'am. ma'am. Yeah. Okay. Yes, ma'am. आप कोई भी वेबसाइट देखोगे तो जनरली उसका लेआउट थोड़ा बहुत सेम रहेगा. ओके, ये जब डिस्कस करेंगे तो आपको समझेगा ना. पहला आप जब भी कोई वेब पेज व्यू करते हैं तो ऑन द टॉप साइड व्हाट थिंग्स यू एनकाउंटर, क्या क्या रहता है जनरली? आपको एक बड़ा सा हेडर मिलेगा. जो भी सपोज यू आर विविंग सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी, ओके, तो पहला आपको सामने जो पहला दिखेगा इन बोल्ड, it will be the name of that particular institution or whatever website you are viewing, है ना? उसके थोड़ा नीचे आप देखोगे तो you will be getting all the navigation links. मतलब if you will click on that, it will take you to the some other page. मतलब क्या रहेंगे? हाइपर लिंक्स रहेंगे. और सम आपने देखे कैसे ऐड में आते हैं, देखो स्क्रोलिंग बार्स, मतलब स्क्रोलिंग टेक्स्ट रहता है. न्यूज में आते हैं देखो नीचे Yes, स्क्रोलिंग yes. टेक्स्ट. हाँ, similarly if you go to any website you will be encountering this scrolling text, and if you click it will navigate from the first page, आपका जो भी पेज है, to some other page. So generally in this nav, it is for navigation. उसमें क्या रहेंगे? generally there will be hyperlinks, मतलब जिसको क्लिक करके आप कोई और
हेलो, Yeah, ma'am. Yes, ma'am. ओके आई गॉट। तो आवाज पहले वेबसाइट का नाम आएगा, उसके नीचे आपको अलग अलग नेविगेशन मिल जाएगी, ठीक है। उसके नीचे आप जब देखोगे तो जनरली लेफ्ट साइड में ना ऐसे आर्टिकल्स रहेंगे, मतलब सपोज अभी हमारी पीजीसी की वेबसाइट है, तो हमारे पीजीसी पे कितने स्ट्रीम्स है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स है, राइट। सो यू विल बी गेटिंग डिफरेंट आर्टिकल, और उस आर्टिकल के अंदर अलग अलग सेक्शन रहेंगे, मतलब एक पूरा आर्टिकल है, उसमें 3 सेक्शन रहेंगे, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स। ओके, आर यू एबल टू रिलेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? कि लेफ्ट साइड में आपको एक बड़ा ऐसा आर्टिकल का एक बॉक्स दिखेगा, उसमें सेक्शंस रहेंगे अलग अलग। सपोज आप पीजीसी की वेबसाइट देखेंगे तो आपको आर्ट, साइंस, कॉमर्स ऐसे अलग अलग सेक्शन में उनके बारे में जानकारी मिलेगी, ठीक है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? प्लीज रिप्लाई। Yes, yes, ma'am. ma'am. Yes, तो ma'am. हम एग्जांपल देखने वाले, वी विल बी एक्चुअली लुकिंग इनटू द वेबसाइट, फर्स्ट अंडरस्टैंड द लेआउट कैसे रहता है। ओके, तो हमारा मेन जो आर्टिकल है वो हो गया। कभी कभी राइट साइड पे आपको दिखते हैं कि सम एड्स आर देयर, एक्चुअली विच आर नॉट रिलेटेड टू दिस, बट देयर आर सम एड्स। मतलब सपोज अभी जूनियर कॉलेज का आप देख रहे हैं तो देयर माइट बी सम टाई अप कॉलेजेस या टाई अप क्लासेस के एड्स, तो दोज ऑल कम्स इन दिस असाइड टैग, मतलब साइडर्स। ओके, ऐसे आते हैं ना एड्स, आपने देखा है कभी? मतलब Yes, Yes, ma'am. आर यू गेटिंग? हाँ हाँ, तो जो भी ऐसे रिलेटेड ये रहते हैं वो असाइड के टैग में आ जाएंगे। एंड द लास्ट इज व्हाट? फुटर। फुटर मतलब जनरली इट गिव्स सम कांटेक्ट अस, ऐसा इंफॉर्मेशन आएगा, फिर ये वेबसाइट किसने बनाई है उनके बारे में इंफॉर्मेशन आएगी। ये तो जो सारा रहता है वो फुटर में रहता है। ये क्यों बनाया है ऐसे कि कोई भी आप वेबसाइट देखो तो आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है, देयर शुड बी सम कंसिस्टेंसी व्हाइल डिजाइनिंग द वेबसाइट। इसलिए आप कोई भी एक दो तीन हम कंपेयर करेंगे and you will see that the layout is almost same। ऊपर आपको दिखेगा हेडर, उसके नीचे आपको सारे नेविगेशन लिंक दिखेंगे, लेफ्ट साइड में आपको अलग अलग उसके आर्टिकल्स के सेक्शन दिखेंगे, राइट साइड में रिलेटेड सम एड्स या और कुछ असाइड, मतलब जो साइड के कंटेंट्स है, जो मेन कंटेंट से थोड़ा रिलेवेंस रखते हैं वो रहेंगे। एंड एट द लास्ट फुटर में आप देखेंगे कि वेबसाइट किसने बनाई है, आपकी वेबसाइट मतलब हाउ वी कैन कांटेक्ट देम, तो दे विल बी प्रोवाइडिंग देयर नंबर्स, ईमेल आईडी, Location. ऐसे। ओके, लोकेशन, या देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच विल बी इंक्लूडेड इन दिस फुटर। ऐसा नहीं है कि ये स्पेसिफिक चीजें रहेंगी। सो व्हाट वी विल डू, वी विल कंपेयर द वेबसाइट्स। ओके, उसके पहले हम उसका कोडिंग देखेंगे कि कैसा एक्चुअली स्ट्रक्चर कैसे रहेगा। तो द सेम थिंग, ये अभी हमने क्या देखा, इट इज आउटपुट, कि आउटपुट में कैसा दिखेगा, कौन सा सेक्शन किधर आएगा, तो उसका कोडिंग कैसे रहेगा। तो ये है उसका कोडिंग, अंडरस्टैंडिंग कोडिंग। ये है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML5। सिंस वी आर यूजिंग HTML5 तो अभी हमको बेसिक स्ट्रक्चर HTML5 का देखना है। तो अगेन यू कैन सी द फर्स्ट लाइन वी जस्ट डिस्कस, exclamatory mark doc type space HTML. What does it indicate? It indicates the flavor of the HTML, that is HTML5, right? ये आपके कोडिंग में कुछ दिखाई नहीं देगा, it won't be displayed, just to tell the browser कि ये जो मैंने कोडिंग किया है it is of HTML5, right? Then next सेकेंड लाइन क्या है, HTML हमारा डॉक्यूमेंट स्टार्ट हो रहा है, और लास्ट लाइन क्या है आपकी, HTML बंद। तो ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है it is again divided into two sections as early we have discussed। कौन से two sections है? हेड एंड बॉडी, राइट। हेड में क्या रहता है, टाइटल, वो वैसे के वैसे। अभी जो एक्चुअली हमको डिस्प्ले करना है वेब पेज पे, उसका लेआउट कैसे रहेगा, उसके लिए आप देखोगे कि जो भी हेडर है, हेडर के अंदर आपको NAV टैग दिखेगा, मतलब इस NAV के अंदर आप जो भी आपके हाइपरलिंक है वो सारे डालोगे। समझ में आ रहा है? You can observe that all the tags you are looking here are which type of tags? Are they container or empty? Yes, are they container tags or empty Container. tags? Container, right? तो आप देखोगे कि हेडर सेक्शन स्टार्ट किया है और हेडर सेक्शन नीचे बंद किया है, तो उसके अंदर मैं क्या क्या डाल सकती हूँ, सिर्फ NAV टैग डाल सकती हूँ, जिसमें क्या आएंगे, सारे हाइपरलिंक्स आएंगे। एग्री? हेडर सेक्शन बंद होने के बाद सेक्शन टैग शुरू हो रहा है। अभी इस सेक्शन के अंदर क्या आएंगे, अलग अलग आर्टिकल्स आएंगे। सपोज आर्ट्स का एक आर्टिकल, कॉमर्स का एक आर्टिकल, साइंस का एक आर्टिकल, राइट। उसके बाद हमने राइट साइड में क्या देखा था, असाइड। तो ये असाइड
में आप कुछ ऐड डाल सकते हैं या कुछ भी डाल सकते हैं. एंड द लास्ट इज व्हाट, फूटर टैग. एट द एंड ऑफ द वेब पेज यू विल बी सीइंग दिस footer. Is this structure clear, so that we will see different websites and understand how these sections actually look? A clear hai? Yes, ma'am. Yes. Okay, so I am stopping presenting this slide and we'll see how does the different website look. Okay. आपको दिख रहा है क्या? Yes, so currently we are on which website? सावित्रीबाई फुले. सावित्रीबाई फुले. हाँ, तो जस्ट ट्राई टू रिलेट. अभी हमने जो लेआउट देखा और ये वेबसाइट, तो इधर ऊपर आपने पहले क्या एनकाउंटर किया, सावित्रीबाई फुले इन द हाईएस्ट हेडिंग, राइट? Header. और वैसे बराबर सेंटर में आया, तो इट विल बी अ हेडर, है ना? Yes. राइट. हाँ, उसके नीचे आप देखो, अभी इधर मैं ऐसा जैसे मेरा माउस पॉइंटर घुमा रही हूँ, तो यू कैन सी देयर आर डिफरेंट हाइपरलिंक्स. आपको दिख रहा है कि ये हाइपरलिंक्स है. यू कैन सी माय माउस पॉइंटर इज नो मोर एन एरो, इट हैज टर्न टू अ हैंड. दैट हैंड इंडिकेट्स व्हाट, इट इज अ लिंक, हाइपरलिंक. आर यू एबल टू व्यू इट? No, ma'am. नो. ओके, यू कैन गो एंड चेक द वेबसाइट. सी, ये जो सारे लिंक्स है, हाँ अभी दिख रहा होगा शायद. Yes, I'll ma'am. just- दिख रहा है. I will just hold that Yes, ma'am. pointer there so that you will be able to view it. हाँ रहा है क्या, दिख रहा है? Okay, you want to check it as a hyperlink, so क्या करती हूँ मैं, क्लिक करती हूँ उसको and it will take me from one page to other page, है ना? ये तो है, सही है. ये अभी क्या हो गया, हम दूसरे पेज पे चले गए, तो this indicates that it is a hyperlink. आपको दूसरा पेज दिख रहा है कि ऐसे व्हाइट बैकग्राउंड वाला? Is it visible? Yes, ma'am. रिसर्च Yes, पब्लिकेशन कोड. हाँ, Ma'am. तो क्या देखा हमने कि ये जो सारे ऊपर दिए गए हैं हेडर के बाद ये सारे नेविगेशन थे, राइट? तभी थोड़ा नीचे आएंगे तो इधर लेफ्ट साइड पे आप देखोगे कि फ्रॉम चांसलर डेज, फ्रॉम वीसी डेज, ये क्या है, सारे हमारे अलग अलग सेक्शंस है. दिख रहा है क्या आपको ये? बेटा लोड हो रहा होगा. आर यू एबल टू व्यू इट? बीच पे देखो, यहाँ पे फ्रॉम चांसलर डेस्क, फ्रॉम वीसी डेस्क, और यहाँ पे छोटे छोटे से आर्टिकल्स है, अलग अलग सेक्शंस है. तो दिस इंडिकेट्स द आर्टिकल, द होल आर्टिकल विच इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्शन. ओके, आपको दिख रहा है क्या? प्लीज रिप्लाई स्टूडेंट्स. Yes, ma'am. दिख रहा Yes, है. ma'am. दिख रहा है. हाँ, अभी यहाँ पे ना राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे देखो, यहाँ पे इनको बोलते हैं साइडर, असाइड. असाइड में तो यहाँ पे कितने बच्चों ने क्या क्या किया है, विच इज एक्चुअली नॉट रिलेवेंट, या फिर कोई अलग लिंक्स है कहीं पे आपको वो लेके जाएगी, न्यूज एंड अनाउंसमेंट, ऐसे तो वो आते हैं साइडर के इसमें. ओके, एंड लास्ट यहाँ पे नीचे आप देखो कि फुटर में क्या दिख रहा है. बट आई विल जस्ट झूम इट एंड सो दैट यू विल बी एबल टू व्यू इट. नीचे आपको दिख रहा है क्या कुछ कि ये वेबसाइट किसने बनाई है? हियर यू कैन सी आई एम हाइलाइटिंग द हियर, ब्लू कलर में आएगा, Yes, ma'am. है ना? किसने बनाई है, फिर आपको कांटेक्ट कैसे करना है, कॉपीराइट के वो जो डिस्क्लेमर वगैरह, जो एक्चुअली मैंडेटरी, मतलब वेबसाइट के इसमें कंटेंट के रिलेवेंट नहीं रहता है, बट दोज आर द मैंडेटरी थिंग्स यू नीड टू मेंशन, तो वो सारा फुटर में आएगा. सी हियर आल्सो यू कैन सी कि कितने विजिटर अभी ऑनलाइन है उस वेबसाइट पे. दिख रहा है आपको? मैंने हाईलाइट किया है. There are total 436 visitors online. आप देख सकते हैं जो ग्रे कलर में वो पूरा पट्टी है ना, that is the footer part. Okay, so this is how a website layout is. Again we will see Mumbai University. So now the second website we'll be viewing is Mumbai University. ये दिख रही है आपको? Yes, ma'am. हाँ, दिख Yes, रही है. ma'am. तो here in the top section you can see University of Mumbai. अभी ये थोड़ा लेफ्ट में लिखा है but it is the header. ठीक है,
उसके साइड में आपको ये नेविगेशन लिंक्स दिखेंगे अलग अलग, होम ऑफ, ठीक है। उसके नीचे आपको क्या दिखेगा, द सेक्शंस। देखो आपको इधर दिख रहे सेक्शन, कोर्सेज, एडमिशन, लाइब्रेरी, कैंपस रीजन, ये बन गए सेक्शन। यस, दिख रहे हैं आपको? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. सिमिलरली अभी यहाँ पे देखो फोटो गैलरी वगैरह है, मतलब ये आप असाइड बोल सकते हैं। इधर सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंसेस कितने हो गए हैं, इसको आप असाइड बोल सकते हैं। एंड इन द लास्ट यू कैन सी द फूटर सेक्शन, यू कैन सी हियर कैरियर्स, कॉन्टैक्टर्स, ये सारे अलग अलग जो फूटर पार्ट में है, दैट इज द फूटर पार्ट। ओके, सो दिस इज हाउ एक्चुअली क्या है, कंसिस्टेंसी के लिए उन्होंने ये ऐसा लेआउट दिया है। आई होप इट इज क्लियर कि वेबसाइट का लेआउट कैसे दिखता है, राइट? Okay, so we'll go back to our presentation. Actually आप जब भी कोडिंग करोगे हमारे इसके आगे, so there is no need to mention all this header, navigation tag, ये सिर्फ आपको पता होने चाहिए, that is why we have discussed. But whenever you are coding, which tag have to be there in your code? Yes, which are the mandatory tags that has to be there in your code? Those are the basic tags. So वो जो basic structure है वो आपको पूरा अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। नाउ यहाँ पे उन्होंने उन टैग्स के बारे में जानकारी दी, तो आई डोंट थिंक देयर इज नीड टू डिस्कस हियर। आपको ये चाहिए तो आई नीड टू डिस्कस कि हेडर किसके लिए है, nav किसके लिए है, सेक्शन, आर्टिकल, वी हैव ऑलरेडी सीन दिस। यस, इज इट ओके इफ वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now we Yes, will ma'am. see text formatting elements. So first tell me what exactly a text formatting means. क्या रहेगा टेक्स्ट फॉर्मेट? मतलब क्या करना है, आपको उस टेक्स्ट को थोड़ा सा सजाना है ना, जस्ट टू मेक इट अट्रैक्टिव। सो अगर सपोज वर्ड डॉक्यूमेंट में मैं कुछ टाइप करी एंड आई वांट टू मेक इट अट्रैक्टिव द टेक्स्ट, तो मैं क्या क्या यूज करती हूँ? वर्ड डॉक्यूमेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट वर्ड डॉक्यूमेंट। यस, Different font. Bold, italic, yes, bold, italic, underline, yes, very good. highlight. तो yes, highlight, very good. तो जो भी टेक्स्ट Word art. फॉर्मेटिंग रिलेटेड है, हाँ, तो अभी वो तो सारा वर्ड में हो गया। बट अगर मेरे वेब पेज में भी मुझे मेरा जो टेक्स्ट है वो फॉर्मेटेड चाहिए, तो ऑब्वियसली HTML है तो उसका क्या रहेगा, उस पर्टिकुलर काम के लिए क्या रहेंगे, टैग्स रहेंगे। So those all tags come under text formatting element और physical style tag, इसको बोलेंगे हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग या फिजिकल स्टाइल टैग। फिजिकल स्टाइल मतलब फिजिकली उसका अपीयरेंस हमको चेंज करना है, राइट? फॉर व्हाट? टू मेक इट लुक मोर अट्रैक्टिव। तो अगर आपको बोल्ड करना है एक टेक्स्ट, तो आपको कौन सा टैग यूज करना पड़ेगा? द टैग टू मेक दैट पर्टिकुलर टेक्स्ट इज बी टैग, है ना। हमने अभी देखा कि अगर आपको HTML में कुछ भी काम करना है तो उसके लिए अलग अलग टैग्स उन्होंने बना के रखे हैं। हम खुद का मन का टैग बना सकते हैं क्या? नहीं, जो ऑलरेडी उन्होंने टैग्स दिए हैं वो बस हमको यूज करने हैं। तो अगर मेरी कोई टेक्स्ट को मुझे बोल्ड करना है तो मुझे p टैग यूज करना है। नाउ हियर ऑल टैग्स व्हिच वी आर सीइंग आर ऑल द कंटेनर टैग। ओके, यस, एनी डाउट? उन्होंने कैसे टैग बनाया? क्या? उन्होंने टैग कैसे बनाया? आई एम नॉट एबल टू हियर यू प्रॉपर्ली। यस, व्हाट वाज योर क्वेश्चन? मैम उसको वो तो टैग बनाया। बेटा, आई एम नॉट एबल टू हियर यू प्रॉपर्ली, योर वॉइस इज ब्रेकिंग। किसी को समझा क्या क्वेश्चन? कैन एनीबॉडी रिपीट दैट क्वेश्चन फॉर मी? मैम उसको बोलना है कि HTML टैग्स कैसे बनाए। कैसे बनाए हैं? ये जो लैंग्वेज बनाई है, जो प्रोग्रामर्स ने बनाई है, उन्होंने ये डिसाइड किए हैं टैग्स क्या क्या करने हैं, हम बस उसको यूज कर रहे हैं। हमने देखा है HTML किसने इन्वेंट की है? यस, इन द फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर ओनली वी हैड सीन किसने बनाई है? टिम बर्नर्स-ली। हाँ, तो उन्होंने ये सारा
डेवलप किया है और हम सिर्फ उसको क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। सी हियर यू कैन सी दिस लैंग्वेज इज इन्वेंटेड बाय टिम बर्नर्स-ली। तो उन्होंने जो भी टैग्स बना के दिए हैं हमको, वो हमको बस यूज करने हैं हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, राइट। सो जो भी टैग्स है उनके काम हम सीख रहे हैं। तो अगर मुझे बोल्ड बनाना है तो मैं कौन सा टैग यूज करूंगी, बी टैग। अगेन आई एम रिपीटिंग, आप आपके मन से कोई भी टैग नहीं बना सकते हैं, ठीक है। ये जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड टैग्स है हमको सिर्फ उनको यूज करना है, राइट। समझा आपको? हाँ। अभी मुझे Yes, अगर ma'am. इटैलिक बनानी है, मेरे टेक्स्ट को मुझे इटलाइज करना है, तो मैं कौन सा टैग यूज करूंगी? इट इज वेरी सिंपल, आई टैग। सो माय क्वेश्चन इज, कैन आई राइट कैपिटल आई? No, Yes. ma'am. Can I write capital I, or I have to write small I only? Yes. ma'am. What yes? Yes मतलब क्या लूंगा? मैम ओनली स्मॉल आई। Capital और small Capital और दोनों small भी लिख सकते हैं. दोनों भी लिख सकते हैं. On the first lecture we had seen that HTML is not case sensitive. Not case sensitive मतलब वो जो tags आप जो भी लिखोगे, आप भले ही वो स्मॉल में लिखो, बड़े में लिखो, या आप सेंटेंस केस में लिखो। सेंटेंस मतलब क्या है, पहला लेटर बड़ा है एंड बाकी के स्मॉल में आएंगे। इट इज गोइंग टू गिव यू द सेम आउटपुट ओनली। ये क्वेश्चन आपको एक्सटर्नल पूछेंगे, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। आपके जो टैग्स रहते हैं दोज आर नॉट केस सेंसिटिव। ओनली टैग्स, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली टैग्स। फाइल नेम वगैरह ये रहता है वो केस सेंसिटिव रहता है। सिर्फ आप एंगुलर ब्रैकेट में जो भी लिख रहे हो, द टैग नेम आर नॉट केस सेंसिटिव। तो अगर आप आई स्मॉल में लिखो या बड़े में लिखो, कैपिटल में लिखो, इट इज गोइंग टू गिव यू द सेम आउटपुट। So for italic text, you need to use I tag. Okay. Next is U tag. This U is for underline text. अगर आपको कोई टेक्स्ट को अंडरलाइन करवाना है आपके वेब पेज पे, तो you have to use U tag. Now there is a next tag is mark. क्या रहेगा आपको mark? हाईलाइट। Highlight. So in the Highlight. example you can see what is the text, hello welcome to information technology, but I want to highlight that क्योंकि वो मेरा मेन ये है। तो मुझे अगर कुछ ऐसा हाईलाइटिंग का काम करना है तो आई हैव टू मेक यूज ऑफ मार्क। नेक्स्ट स्मॉल। अब ये स्मॉल टैग क्या करता रहेगा, सी आप अगर कोई वेब पेज देखेंगे तो जो टेक्स्ट आप टाइप करते हो तो उसका एक पर्टिकुलर फॉन्ट साइज रहता है, अ प्री डिफाइंड फॉन्ट साइज। बट सपोज इफ देर इज अ नीड कि आपको एक पर्टिकुलर लाइन या एक पर्टिकुलर सेंटेंस आपको उस फॉन्ट के थोड़ा छोटा दिखना है, नॉर्मल फॉन्ट साइज से थोड़ा एक फॉन्ट छोटा, एक साइज फॉन्ट छोटा दिखना है, तो फॉर दैट you need to make use of small tag. Okay, is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, अभी इसका एग्जांपल एक्चुअली पहले देखो आप, H2SO4। तो आपको ये टेक्स्ट सिमिलर दिख रही है या कुछ उसमें चेंजेस है? आर द टेक्स्ट गिवन इन सेम फॉर्मेट या उसमें कुछ अलग फॉर्मेटिंग है? अलग फॉर्मेटिंग है, अलग है, क्या अलग है, कौन से इसको अलग फॉर्मेटिंग है? नंबर्स छोटे दिख रहे हैं। सिर्फ नंबर से, वेरी गुड। दिस 2 and 4 आर नॉट सिमिलर टू HSO। ओके, ये क्या हो गए हैं, छोटे हो गए हैं और वो नीचे आए हैं। इफ यू ऑब्जर्व उनका साइज छोटा होकर वो नीचे है, तो सच टाइप ऑफ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इज कॉल्ड एज द सबस्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं उसको, सबस्क्रिप्ट। तो अगर आपको कुछ केमिकल फॉर्मूला लिखना है, केमिकल रिएक्शन लिखना है, तो यू नीड टू मेक यूज ऑफ दिस SUB tag. What does this SUB tag do? It makes the text which is enclosed in the subscript as a subscript. समझे? ये हम एग्जांपल एक्चुअली एग्जीक्यूट करेंगे, डोंट वरी। नेक्स्ट इज व्हाट, SUP। नाउ हियर ये जो दिख रहा है आपको एग्जांपल, x + y ब्रैकेट में है एंड 2 स्क्वायर। तो ये 2 को भी अलग फॉर्मेटिंग दिख रही है, बराबर। इसका भी साइज छोटा हो गया है और क्या हो गया, वो ऊपर गया है। तो सच टाइप ऑफ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इज कॉल्ड एज व्हाट, सुपरस्क्रिप्ट। एक हिंट देती हूँ, सुपर मतलब ऊपर ओके, सब मतलब नीचे, तो सुपर मतलब ऊपर है, राइट। क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट में। तो अगर कोई टेक्स्ट ऊपर है तो फॉर दैट यू नीड टू मेक यूज ऑफ सुपरस्क्रिप्ट। तो सुपर का क्या फॉर्मूला है या क्या टैग नेम है, SUP। ओके,
Wait 1 minute, I'm getting some message. Hmm, 57. Okay. Actually, it gave me some users maximum limit error. I hope the PPT is visible to all. Yes, ma'am. Yes, Yes, okay. ma'am. Okay. ma'am. We'll ignore Yes, that. ma'am. Yes, ma'am. Now, insert ins. Now, anything that appears within this tag element is displayed as an inserted tag. So, इसका हम देखेंगे output कैसा है. And delete. Anything that appears within the delete element is displayed as deleted text. तो ये हम देखेंगे इसका output actually दिखता कैसा है in the next lecture. ठीक है. इसमें आपको कुछ doubt है क्या? See here, आप अभी कोडिंग देखो, उसका कोडिंग एक्चुअली होता कैसा है. आपको कोड दिख रहा है? Yes. Yes. So the first Yes. line क्या है? Exclamatory mark doc type HTML. Why? To indicate the flavor of HTML. That is HTML5. उसके बाद हमारा actual HTML document शुरू हुआ है. And the last line is what? HTML. That is /HTML. अभी ये पूरा HTML document कितने section में divided है? 2 section में. Head and body. Right? Head बंद होने के बाद ही body शुरू हो रहा है. Understand, many students from 12th also they still make this mistake. Until and unless you close the head section, you cannot start body. Okay, I hope it is clear. Head बंद किया है, देखो /head, उसके बाद ही body tag. And whatever title you want to mention for your particular web page, you have to mention here in the title tag. नेक्स्ट, अभी ये बॉडी में जो आपको इतने सारे लाइंस जो दिख रहे हैं, ये सारे आपको प्रिंट होगी हमारे वेब पेज पे, राइट? तो क्या आएगा पहले? हेलो वेलकम. हाँ, उसके बाद क्या है? देयर इज अ बीआर टैग. विल गो लाइन बाय लाइन, विल अंडरस्टैंड हाउ द आउटपुट इज डिलीवर्ड. तो पहली लाइन क्या प्रिंट होगी? हेलो वेलकम. उसके बाद उसने क्या एनकाउंटर किया? बीआर टैग. नाउ व्हाट डज दिस बीआर टैग स्टैंड्स फॉर? उसका काम क्या है बीआर टैग का? वी हैव सीन ब्रेक रूल, Background. राइट? मतलब बैकग्राउंड नहीं, ब्रेक रूल. मतलब इस बीआर टैग के आगे जो भी टेक्स्ट आएगा वो सारा नीचे लाइन पे आएगा. बीआर टैग जहां पे आप लिखोगे उसके बाद जो भी टेक्स्ट आएगा वो सारा न्यू लाइन पे आएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट लाइन पे कौन सा टैग यूज किया है? बी टैग. और बंद कहा हुआ है? सेम B/B. तो Ma'am, इन यस, how can we define the BR tag? डिफाइन मतलब अगर उसकी डेफिनेशन देनी हो तो हम कैसे दे सकते हैं? BR tag is used to give a BR tag, actually it is called as a break rule. Whatever text is written after BR tag, that all text is shifted to the new line. Generally this BR tag is used for getting a new line. समझा? हाँ, समझा? आप हमें ना आउटपुट देखेंगे तब आपको क्लियरली वो समझेगा. अभी देखो बी टैग कैसा लिखा है? बी टैग क्या है? कंटेनर टैग है. तो आप देखोगे सेकंड लाइन पे बी ओपन हुआ है और बी क्लोज भी हुआ है. उसके बीच में आप जो भी लिखोगे उसको क्या फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी? ओपनिंग ऑफ बी एंड क्लोजिंग ऑफ बी टैग के अंदर आप जो भी लिखोगे उसको क्या फॉर्मेटिंग होगी? Bold. बोल्ड. सिमिलरली इटैलिक, अंडरलाइन ये हमने लिखा है. मार्क लिखा है. मार्क मतलब हाईलाइटेड. सो क्विकली वी विल सी द आउटपुट एक्चुअली, बिकॉज आई नीड टू एंड द सेशन. आपका अलग लेक्चर है. तो ये आप आउटपुट देखो. पहले क्या था? वेलकम, हेलो वेलकम. उसके बाद हमने क्या डाला? बीआर टैग, इसलिए वो नीचे आया, सब नीचे आया. नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बोल्ड दिया, फिर हमने इटैलिक दिया, फिर हमने अंडरलाइन दिया, फिर मार्क, है ना? उसके बाद आप देखो ये जो इंफॉर्मेशन है येलो हाईलाइटेड के नीचे, अगर आप पूरा कंपेयर करोगे तो ये एक फॉन्ट साइज छोटा दिख रहा है. क्यों? क्योंकि हमने स्मॉल टैग यूज किया है, राइट? देन नेक्स्ट क्या है? दिस इज सबस्क्रिप्ट. अभी देखो सब मतलब छोटा होके नीचे गया एंड सुपर मतलब छोटा होके ऊपर गया, राइट? तो सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट. नेक्स्ट, दिस इज इंसर्टेड टेक्स्ट. अभी ये जो इंसर्टेड टेक्स्ट इट will be looking similar to underline. That is why I told you we will see the output. तो ये जो INS है inserted tag, ये आपको similar दिखेगा underline के जैसे ही. So you can use either of this. Okay. And the last line is what? You can see there is a strike on it.
मतलब क्या है, इट इज अ डिलीटेड टेक्स्ट। तो सब, अगर आपको कुछ टेक्स्ट ऐसे दिखाना है कि वो था बट अभी वो डिलीटेड है, तो हाउ यू विल शो? यूजिंग del टैग, राइट? समझा? यस, ओके। Actually, abhi we will stop right now. Okay, just hold on. Let me take your attendance.